Hello dear student, I am Varun Nishad from LBM school, and in this video we will talk about the occurrence of metal and basic metallurgical process. But this chapter has been deleted by the CBSE. This portion has been deleted by the CBSE, and but we will take the some information about the occurrence of metal and how to find the pure metals from the metals compound and ores. And let's discuss about the occurrence of metal. Dear student, the metals are found into earth crust, but in some amount, the maximum amount our earth crust मैक्सिमम अमाउंट में हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है मेटल्स। एंड कुछ मेटल्स जो है मिनरल्स की फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स विच इज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। दीज आर minerals found into the minerals which is sea water में भी metals होती हैं in the form of minerals, और minerals से magnesium chloride, sodium chloride and calcium chloride, and maximum amount in our earth crust। मैक्सिमम अमाउंट में जो मेटल का ऑकरेंस होता है वो अर्थ क्रस्ट में होता है। एंड मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो मोर रिएक्टिव होती हैं। फॉर एग्जांपल, some metals are more reactive and they found in their compounds. Like if you see the reactivity of metals, which is sodium, potassium and aluminum, calcium, these metals are more reactive। और ये जो मेटल्स जो मोर रिएक्टिव होती हैं वो किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। दे फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड। ये जब कंपाउंड्स के फॉर्म में होती हैं, ये कंपाउंड फॉर्म कर लेती हैं। जो ये मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, these are the metals which are highly reactive in nature. That's why they combine। और अर्थ क्रस्ट में, in अर्थ क्रस्ट contain maximum amount of oxygen in maximum amount, and that's why these metals are formed firstly their metallic oxide। These are the metal, and when metal combine with oxygen they form metallic oxide। अगर ये ऑक्सीजन जहां पे ये होते हैं, अगर ऑक्सीजन लेस अमाउंट में है तो वहां क्या होता है, सल्फर गैस से ये रिएक्शन कर लेते हैं एंड फॉर्म देयर मेटालिक सल्फाइड because these are the more reactive elements, more reactive metals, and that's why we have need to separate। अगर ये मिल जाते हैं, इनको ओर्स के फॉर्म में होते हैं, जब ये ओर्स सेपरेट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हाउ द इलेक्ट्रोलाइसिस phenomena has been happened? So we take the metallic ores and supply the current supply the electric current and after
When they change into the molten state, the metallic ore, the change into molten state at high temperature, at molten state at high temperature, they come into their molten state, and after that we have found that we have collect our pure metal, pure form of metal. अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं, या फिर सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, जिससे कि सपोज वो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर सल्फाइड्स फॉर्म करते हैं, उन ओर्स को हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं. आफ्टर दैट दे supply the at high degree temperature, they get come into the molten state, and then after processing we collect our pure form of metal. So जो ये हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये जो किसी न किसी कंपाउंड में ही फॉर्म होती हैं, और मैक्सिमम फॉर्म में जो अर्थ क्रस्ट मैक्सिमम फॉर्म में ऑक्सीजन गैस कंटेन करता है, और मैक्सिमम जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं वो suppose like sodium, potassium, aluminum, calcium, magnesium, these are the metals which highly reactive and then combine with oxygen and form metallic oxide, or instead of oxygen they will react with sulfur, and form metallic sulfide. And the next is on this reactivity of metal, which is reactivity of metal the least reactive metals are medium reactive metals suppose zinc, iron, lead and copper. ये जो होती हैं ये मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होती हैं, मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट होती हैं. These medium reactive elements also found into the earth crust into their compound. अब ये कंपाउंड में अपने प्रेजेंट होती हैं into their compound, and these form of ores has been separated by, and also one more thing is these ores also form the different types of compound, right? Like oxides and sulfides, and also in form of carbonates. ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी होते हैं, जिंक कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट एंड कॉपर कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ferrous oxide and zinc oxide. In case of sulfides, zinc sulfide, ferrous sulfides, lead sulfide and copper sulfide. These are the compounds, or these are the ores. Ores have been separated by the using of carbon as reduction. Carbon reduction. इनको जब हम सेपरेट करते हैं तो इनको जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं या फिर सल्फाइड्स होते हैं या फिर कार्बोनेट होते हैं या फिर इनके जो डिफरेंट टाइप्स के ओर्स होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वे इसके बाद मैं फ्लो चार्ट में आपको बताया जाएगा कार्बन रिडक्शन प्रोसेस. एंड ये तो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है. इसके बाद मीडियम रिएक्टिव मेटल्स.
medium reactive metals, and now the less reactive or less reactive metals, less reactive metals. ये less reactive metals कौन सी होती हैं? The example is silver and gold. These are the due to the less reactivity, they are found into their native state. यही एक ऐसी मेटल्स होती हैं सिल्वर एंड गोल्ड जो कि अपने नेटिव स्टेट में भी पाई जाती हैं ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी. इनका जो रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होती है वो अन्य मेटल्स के मुकाबले से होती है, वो लेस होती है. तो ये लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनका जो स्टेट होता है वो नेटिव स्टेट में भी पाए जाते हैं. मीन्स और इनके नेटिव स्टेट में ड्यू टू द अवेलेबिलिटी इनटू देयर नेटिव स्टेट वी हैव आल्सो find them from the earth crust on into their mines. It may be silver mines, it may be gold mines, and the silver, in case of silver is also react but less reactive, but also form their sulfide. ये अपना सल्फाइड जरूर बनाता है, but mostly these metals are also found in free native state. ये अपने native state में भी मिलते हैं, और जब ये native state में मिलते हैं तो इनका जो प्यूरिफिकेशन है, इनका जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है वो इजी और इन कंपेरिजन टू मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट मीडियम रिएक्टिव मेटल्स के प्यूरिफिकेशन ज़्यादा इजी वे में हो जाता है, बिकॉज दे हैव लेस रिएक्टिव ड्यू टू द लेस रिएक्टिविटी इनटू देयर नेटिव स्टेट. और ये नेटिव स्टेट में होने की वजह से जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो अन्य मेटल्स की मुकाबले का बेहतर इजी वे में हम जो है प्यूरिफाई कर सकते हैं. एंड नाउ द नेक्स्ट. सो स्टूडेंट, नाउ सल्फाइड ओर्स एंड रोस्टिंग and pure form of metal. ये है स्टूडेंट बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस आपके क्लास 10. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर लेंगे जो कि आपका पहला मेटल हाई रिएक्टिविटी, मेटल लो मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल लिस्ट रिएक्टिविटी. एंड ये है इलेक्ट्रोलाइसिस. पहले का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उसका प्योरिफिकेशन करेंगे. दूसरा जो मेटल लिस्ट रिएक्टिविटी, इनके दो कंपाउंड होते हैं सल्फाइड एंड कार्बोनेट. दोनों को पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे मेटल के, फिर ऑक्साइड को प्यूरिफिकेशन करेंगे. एंड देन मेटल्स लेस रिएक्टिविटी, सल्फाइड में चेंज होगा, फिर रोस्टिंग करेंगे. रोस्टिंग करने के बाद केवल फॉर्म ऑफ मेटल करेंगे. सो दिस इज आवर योर मेटलर्जिकल प्रोसेस, हाउ टू purify our metals from the earth crust of their different types of ores. And in the next video we will discuss about the summary of the metals and non-metals, because another topics which is corrosion and prevention of metals, it is deleted by also CBSE. So the next topic we will discuss in the next video. Thank you.